خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک خاص اور بڑے مضمون پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور وہ ہے بادشاہ کی آمد۔ عزیزو، آج ہم کھجوری اتوار پر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ اس میسج کے اندر ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جب یروشلم کے اندر ہوتی ہے تو کون کون سے واقعات اور کون کون سی نبوتیں ہیں جو پہلے سے خدا کے کلام کے مطابق مسیح کے لیے پیشن گوئیاں کی گئی تھیں وہ پوری ہوئیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر حوالہ کھولے جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 12 سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجوروں کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے کھجوری اتوار کا جو یہ واقعہ ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یا کوئی حادثاتی طور پر خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگ شاہانہ طور پر اس کا استقبال کرتے ہیں، بلکہ یہ کتاب مقدس میں پہلے سے طے شدہ تھا۔ آج ہم اس عظیم واقعے پر اور خداوند یسوع مسیح کے اس شاہانہ استقبال کے متعلق خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جو کہ پہلے سے بائبل مقدس میں طے شدہ تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ازل سے یہ طے شدہ منصوبہ خدا کی نجات کی تاریخ کا پہلے سے بائبل مقدس میں یہ مقرر تھا۔ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو پیدائش کی کتاب اور اس کا 3واں باب اور اس کی آیت نمبر 15 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ میرے عزیزو، یہ پہلی خوشخبری ہے اور یہ پیدائش کی کتاب کے اندر نبوت تھی جو پوری ہوئی کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، جو نجات دہندہ کی آمد کے طور پر یروشلم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ آمین۔ پھر یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53 باب اور اس کی آیت نمبر 5 پڑھے تو لکھا ہے، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ میرے عزیزو، یہ دونوں حوالے اجات جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بادشاہ صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے بھی آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح صرف بادشاہی ہی نہیں بلکہ وہ قربانی بھی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوئے تو نبیوں کی شاندار تو نبوتوں کی شاندار تکمیل جو ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اگر ہم زکریا کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت پڑھے تو زکریا کی نبوت بھی خداوند یسوع مسیح کے جیسے ہی یروشلم کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے ساتھ ساتھ زکریا کی پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں زکریا 9 باب پرانے عہد نامہ میں سے اور اس کا 9واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ آگے پڑھے تو لکھا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ آگے پڑھے تو لکھا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر داخل ہونا اپنی زمینی خدمت کے آخری ہفتے کے دوران میں یہ زکریا نبی کی وہ پیشن گوئی ہے جو کئی سو سال پہلے اس نے کی تھی اور وہ پوری ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ راست باز ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے،
वो हलीम है और गधे पर सवार है। यहां इस हवाले के अंदर 3 गहरी बातें हैं जो हमें मिलती हैं। पहली बात, वो सादिक है, यानी वो रास्तबाज है। आमीन। दूसरी बात, वो निजात देने के लिए आया है, वो निजात दहिंदा है, निजात लिखा है उसके हाथ में है। और फिर तो तीसरी बात है, लिखा है वो हलीम है, वो हलीम बादशाह है। दुनिया के बादशाह आमतौर पर जब अपनी बादशाही में किसी जगह पर जाते हैं तो बड़े शानदार तरीके से जाते हैं। उनकी सवारी, उनके साथ सिपाही हथियारों के साथ होते हैं, और उनकी सवारी जो है, जब बादशाह जाते हैं तो वो घोड़ों पर जाते थे। और घोड़े पर बादशाही का मतलब है, घोड़े पर सवारी का मतलब है कि बादशाह जंग के लिए आया है, बादशाह खून बहाने के लिए आया है, बादशाह तलवार चलाने के लिए आया है, बादशाह अमन को जमीन से खत्म करने के लिए आया है। लेकिन यहां पर देखें, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, ये बादशाह घोड़े पर सवार नहीं है, यह बादशाह गधे पर सवार है। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, जो गधा है ये हलीमी की निशानदेही है। गधा जो है, ये कलामे मुकद्दस के मुताबिक, अगर खुदावंद यीशु मसीह गधे पर बैठ के आया है, ये हलीमी और सुलह और मेल मिलाप की निशानदेही है। खुदावंद यीशु मसीह हलीम बादशाह है, वो दुनिया का बाप के साथ मेल मिलाप कराने के लिए आया है, वो अमन का शहजादा है, इसलिए वो गधे पर सवारी करके आता है। सो मेरे अजीजों, यीशु मोहब्बत और आजिजी से आया है। वो मोहब्बत और आजिजी और अमन और सुलह का पैगाम लेकर आता है। गधे पर सवार होने का ये मतलब है। इसी के साथ साथ जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, लोग खजूरों की डालियां, जो फतह, उम्मीद और निजात की अलामत है, लोग खजूरों की डालियां लेकर खुदावंद का इस्तकबाल करते हैं। कलाम में लिखा है, उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार थे और चारों तरफ से लोग उसके पीछे पीछे, शागिर्द उसके साथ थे, लिखा है औरतों ने अपने दुपट्टे जो है उसके आगे बिछाए, और बहुतों ने लिखा है खजूरों की डालियां काट काट कर आगे रखी और लहराई। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खजूर की डालियां सिर्फ खुशी नहीं बल्कि फतह की अलामत है। यहूदी तारीख में जब भी कोई शख्स या कोई बादशाह फतह पाता था तो लोग क्या करते, खजूरों की डालियां लेते और उन्हें लहराते, और ये खजूरों की डालियां जो लहराते थे, ये इस बात की निशानदेही थी कि बादशाह फतह पा चुका है। आमीन। अब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है, जब खुदावंद यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोग खजूरों की डालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। ये दरअसल इसका जो रूहानी मफहूम अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जो है दुनियावी जंग के लिए तो नहीं आया था, झगड़े के लिए नहीं आया था, हथियार गोले बमबारी करने के लिए नहीं आया था, खून बहाने के लिए तो नहीं आया था। अगर इसको हम रूहानी मफहूम में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो जो लोगों ने खजूरों की डालियां लहराई, वो इस बात की अलामत है कि वो गुनाह पर फतह पा चुका है, कि वो मौत पर फतह पा चुका है, कि वो शैतान पर फतह पा चुका है। आमीन। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो इसी तरह की भीड़ जो यरूशलेम के अंदर डालियां खजूरों की लेकर खुदाओं का इस्तकबाल कर रही है, इसी तरह की एक बड़ी भीड़ हमें मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब की 9वीं आयत में हमें मिलती है। मेरे साथ खोलिए मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 9 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने
और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा और बर्रा की तरफ से है। आमीन। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये जो वाकया है, ये जो वाकया हम मुकाशवा की किताब के अंदर पढ़ते हैं, ये जमीनी भीड़ की जो खुदावंद यीशु मसीह की यरूशलेम में शहाना दाखिले पर खड़ी होती है और उसका इस्तकबाल करती है, इसी तरह की एक भीड़ आसमान पर भी है जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से लिखा है, इसका शुमार नहीं हो सकता कि ये कितनी बड़ी भीड़ है। और ये खजूरों की डालियां लेकर जो है इस बात की अक्कासी करती है कि हमारा खुदावंद जो है वो फतह पा चुका है, गुनाह पर फतह पा चुका है, मौत पर फतह पा चुका है, शैतान पर फतह पा चुका है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो लोगों ने होशना के नारे भी लगाए। होशना एक फरियाद या एक ईमान भी है, और ये कैसा ईमान है? होशना का मतलब है हमें बचा ले या हमें निजात दे। ये लफ्ज जो है, अगर हम ज़बूर 118 और उसकी आयत नंबर 25 और 26 को पढ़ें तो ये लफ्ज जो है हमें ज़बूर 118 और उसकी आयत नंबर 25 और 26 से हमें मिलते हैं जो कि लिए गए हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आ ए खुदावन बचा ले, आ ए खुदावन खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। आमीन। लिखा है मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। लोगों के लिए ये एक सियासी नारा भी था। होशना जो है ये एक सियासी नारा भी था लोगों के लिए, लेकिन खुदा के लिए ये एक रूहानी सच्चाई थी। आमीन। एक गहरी सोच, क्या हम भी सिर्फ मुश्किल में होशना कहते हैं या हम वाकई उस पर ईमान रखते हैं? इन लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह उनको रोमी जालिमाना हुकूमत से निजात देने के लिए आए हैं, लेकिन हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह उनको रोम की सियासी हुकूमत से, जालिमाना हुकूमत से नहीं, बल्कि गुनाह, शैतान और मौत से रिहाई देने के लिए आए हैं। हालेलुया। सो इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं तो लोगों की गलत तवक्कुआत का जो भेद है वो भी हमें इस खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर हमें नजर आता है। लोगों की गलत तवक्कुआत आज का हमारे लिए एक आईना भी है, हमारे लिए एक सबक भी है। लोग चाहते थे कि वो उन्हें इस सियासी हुकूमत से आजादी दे, लोग चाहते थे वो उन्हें दुनियावी ताकत अता करे, लोग चाहते थे खुदावंद यीशु मसीह उन्हें फौरन मौजूदाना तौर पर इस जालिमाना रोमी हुकूमत से आजादी दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में उन्हें क्या देने के लिए आए थे? खुदावंद यीशु मसीह उन्हें हकीकत में रूहानी आजादी देने के लिए आए थे, उन्हें अबदी जिंदगी देने के लिए आए थे, उन्हें गुनाहों की माफी देने के लिए आए थे। आमीन। हालेलुया। सो इसी तरह का एक वाकया है जब खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को अच्छा किया, भूखों को रोटी खिलाई, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, बदरू गिरफ्तों को आजाद किया, तो उन भूखों को खाना खिलाया,
तो लोग यीशु के ये सारे मौजूदात देखकर और भूखों को खाना खिलाते हुए देखकर लोग यीशु को कहते हैं हमें इसी को बादशाह बना लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बीमारों को भी अच्छा कर लेता है, हमारे कमजोरों को भी चंगा कर लेता है, हमारे बदरू गिरफ्तों को भी आजाद कर रहा है, हमारे मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है, और हम भूखे जब होते हैं, हमें जब रोटी की जरूरत होती है हमें रोटी भी दे देता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर भी इस बादशाही को तस्लीम नहीं किया, बल्कि एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस जमीन की नहीं है। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं तो ये यरूशलेम के अंदर दाखिल होना वक्ती तारीफ से मसलूबियत तक इंसानी दिल की हकीकत बयान करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो लोगों ने वक्ती तौर पर बड़ी तारीफ करना शुरू की। ओ ये हमें रोमी जालिमाना हुकूमत से आजाद करेगा, ये हमें शिफा देगा, ये हमें रोटी देगा। और इतवार के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह दाखिल हुए तो वो होशना के नारे लगा रहे हैं। और जैसे ही अगला एक दिन गुजरा, अगले चंद दिन गुजरे और जुमे का दिन आया जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया, यही वो लोग जो पहले कहते थे हमें बचा, हमें निजात दे, होशना के नारे लगा रहे हैं, उससे अपना बादशाह कबूल कर रहे हैं, यही वो लोग यीशु के लिए कहते हैं कि इससे सलीब दो। वक्ती तारीफ से मसलूबियत तक इंसानों के दिल की हकीकत, इंसानी दिल के ख्यालात, हमारे इस दुनिया के अंदर बाज़ औक़ात हम सब के हमारे ख्यालात भी कुछ इसी तरह के होते हैं। बहुत सारे लोगों के ख्यालात, पहले उनके ख्यालात बड़े अच्छे होते हैं, अल्फाज बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे अल्फाजों में तारीफ की जाती है, लेकिन जब उनके तवक्कुआत पर कोई पूरा ना उतरे तो वही मुंह जो बड़े अच्छे, उसी मुंह से जो अच्छे अल्फाज निकाले जाते थे, तारीफें की जाती थी, वो बुराई और बदी और बगावत पर उतर आते हैं। सो मेरे अजीजों, ये तब्दीली क्यों है? ऐसा क्यों? पहले वो तारीफ कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इसे सलीब दो, बराबर को छोड़ दो, इसे सलीब दे दो। इतना बुरा यीशु मसीह चंद दिनों के अंदर उनके लिए बन गया, क्योंकि लोगों का ईमान गहरा नहीं था। वो यीशु को जानते थे, वो यीशु को मानते जानते थे, लेकिन उसे मानते नहीं थे। उनका ईमान अभी इतना गहरा नहीं था। सो मेरे अजीजों, इस बात से हमें, इस वाकये से हमें सीखने को मिलता है, जज्बाती ईमान हमेशा खतरनाक होता है। कई दफा हम बड़े जज्बाती बन जाते हैं और जज्बात में आकर मुंह से बड़ा कुछ बोल जाते हैं, लेकिन ऐसा ईमान, ऐसे बोल, ऐसे अल्फाज खतरनाक साबित होते हैं। हमारा जो ईमान है वो सच्चा ईमान होना चाहिए, और सच्चा ईमान हमेशा कुर्बानी मांगता है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो यीशु का यरूशलेम में दाखिल होना ये बादशाह की असल तख्त नशीनी जो सलीब पर है, इस बात को जाहिर करता है। आमीन। दुनिया समझती है कि तख्त सिर्फ ताकत से मिलता है, लेकिन यीशु ने सलीब को अपना तख्त बना लिया। आमीन। आइए एक हवाला खोले मेरे साथ मिलकर, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब, आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15 जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, दूसरा बाब 14 और 15वीं आयत लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से
उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सलीब के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने फतह पाई है, यही असल फतह है। आमीन। अब वो हुक्मों की दस्तावेज, अब वो कुर्बानियां, अब वो शरीयत का हम पर जो लागू होना था वो हम पर लागू नहीं है। हम खुदावंद यीशु मसीह के कामिल कुर्बानी की सबब से आजाद हो चुके हैं। आज के लिए पैगाम, क्या हमारा दिल भी यरूशलेम के लोगों की तरह है, या हम सच्चे ईमानदारों की तरह मसीह की कामिल कुर्बानी को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी से कुर्बानी पेश करते हैं? यीशु आज भी आता है, जिस तरह वो यरूशलेम के अंदर आया, लोगों ने शहाना तौर पर उसका इस्तकबाल किया। यीशु आज भी आता है, पर सवाल यह है, क्या हम अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलते हैं? क्या हम उसको वाकई हकीकत में अपना बादशाह मानते हैं? अगर हम मुकाशवा की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 20 का मुतालिया करें, तो मुकाशवा की किताब 3 बाब की आयत नंबर 20 के अंदर लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूं। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हमें भी खुदावंद के लिए सच्चे दिल से अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, सच्चे दिल से उसे अपने दिल का बादशाह कबूल करने की जरूरत है। यरूशलेम के लोगों की तरह वक्ती तौर पर नहीं, वक्ती तौर पर उन्होंने यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम किया, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह हकीकत में उन्हें इस जालिमाना हुकूमत से नहीं बल्कि गुनाह पर फतह देना चाहता था, हमेशा की जिंदगी देना चाहता था। आमीन। सो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हम क्या करें? इस खजूरी इतवार के मौका पर हमें क्या करने की जरूरत है? यीशु को, पहली बार लिखें, यीशु को अपना निजात दहिंदा नहीं बल्कि अपना बादशाह माने। वो सिर्फ निजात दहिंदा ही नहीं बल्कि वो हमारा बादशाह भी है। नंबर 2, आजिज़ी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। वो बादशाह था लेकिन उसकी आजिज़ी और हलीमी देखिए, वो गधे पर सवार है। नंबर 3, वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल ईमान रखे। हर हाल में हमारा ईमान कभी डगमगाना नहीं चाहिए, कभी हमारा ईमान दो तरह का नहीं होना चाहिए। मुश्किल वक्त में भी हमारा ईमान और अच्छे वक्त में भी हमारा ईमान मसीहा पर होना चाहिए, वही हमारा बादशाह है। और चौथी बात, दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी सोच अपनाए। रूहानी सोच अपनाए। उस वक्त के लोगों ने दुनियावी सोच रखी कि वो हमें सिर्फ रोमी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए आया है, लेकिन रूहानी सोच उनके अंदर नहीं थी। वो उन्हें शैतान से, गुनाह से और इस दुनिया की गंदगी से आजादी देने के लिए आया है। आमीन। अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करें। हालेलुया। और आज बादशाह की आमद पर सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जिंदा पैगाम क्या है? बादशाह आ चुका है। वो आज भी बुलाता है, वो आज भी खटखटाता है, वो हमारे दिलों पर हुकूमत करना चाहता है। आमीन। आए हम भी खजूरों की डालियां नहीं, अगर खजूरों की डालियां हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपने दिल, अपनी जिंदगियां, अपनी इबादत उसके कदमों में रख कर उससे अपना हकीकी बादशाह तस्लीम करें, तौबा करें, गुनाहों को छोड़ें, हकीकी बादशाह यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का
حصہ بنائیں اور اپنی زندگیاں مکمل طور پر خداوند کے حوالے کر دیں. So God bless you all. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آمین.